ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معظم ملک، میں اور آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم لبرٹی مارکیٹ لاہور میں آئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ کیوں ہے۔ 1.5 کروڑ انسان جو ہیں پاکستان میں وہ جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان امپلائمنٹ کا یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ، مجھے آپ یہ بتائیے گا، مہنگائی کے آج ہمارا ٹاپک ہے، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مہنگائی پہلے سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، یا آپ کی ساری چیزیں اب آپ نے خرید لی ہیں یا کچھ رہ گئی ہیں؟ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، پہلے سے زیادہ ہے، مطلب پہلے جتنے پیسوں میں ہماری زیادہ چیزیں آ جاتی تھی، اس پیسوں میں تھوڑی آ جاتی ہے، کم ہو جاتا ہے۔ پہلے جس پیسوں میں دو سوٹ آ جاتے تھے، اس میں ایک آ جاتا تھا۔ ہاں، اور اس لیڈرشپ کے بعد آپ نے کیا فیل کیا ہے مہنگائی کے بارے میں، کہ کچھ چیزیں کا ریٹس کم ہوئی ہیں یا ویسے ہی ہے یا بہت زیادہ اب ہو گئی ہے؟ کہ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ جب آپ کے گھر والے آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو اس میں آپ کتنا کور کر چکی ہیں اور کتنا رہتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ نا، مطلب ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ نرسنگ کر رہے تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتے ہیں، تو پہلے جو تھا وہ اور تھا، مطلب ہمیں زیادہ پیسے ملتے تھے، لیکن اس میں سے بچ بھی جاتے ہیں، بچتے بھی نہیں۔ اب بچتے نہیں ہیں، صحیح کہا ہے آپ نے فاطمہ، اب بالکل پیسے نہیں نہیں بچتے بچتے، ہیں۔ پتہ ہی تھینک یو نہیں سو چلتا مچ کیا فاطمہ، تھینک یو۔ پوچھتے ہیں السلام علیکم، پھر کیا نام ہے آپ کا؟ رانا محمود نام ہے۔ رانا محمود صاحب سے ہم تو رانا محمود صاحب، آپ نے یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے جو حالات تھے، آج سے 20-30 سال پہلے جو حالات چلتے تھے وہ بہت نارمل حالات تھے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی برڈن کا شکار ہے، پریشانی ہے بے شمار، کیوں بلوں کی وجہ سے، اور کھانے پینے والی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ حکمرانوں کو چاہیے اس کا جو ہے کنٹرول کریں، ورنہ ملک میں آپ دیکھیں یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ چوری ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان کے وسائل جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ لوگ چوری ڈکیتی پہ آ جاتے ہیں، تو لوگ خود گھر میں اکثر لڑائی بھی آتی ہے نا، یہ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے گھروں یہ میں بے روزگاری تو 1.5 کروڑ جو عوام ہے وہ ان امپلائڈ ہے، 1.5 کروڑ یعنی کہ 150 لاکھ بندہ جو ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ جی تو یہ تو بڑا ایک سیویئر میٹر ہے۔ یہ سویٹ میٹر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ گریجویشن کی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ رکشے چلا رہے ہیں، سڑکوں پھر رہے ہیں، تو اس طرح وہ کرمنل بن جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو ڈھونڈ کے ان کو کام پہ لگایا جائے، ملک میں فیکٹریاں لگائی جائیں، اور یہ اپنا ملک میں فیکٹریاں لگائی، یہ بڑی اچھی بات ملک کے اندر فیکٹریاں لگائی جائیں، جو لوگ فارغ ہیں ان کو اپنا جاب دی جائے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے مسئلے مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکیں کہ یہ نئے نئے وزیر اعظم آ جاتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ عوام کا کوئی نہیں سوچتے۔ یہ جو جتنے اس طرح پرائم منسٹر آ رہے ہیں نا، یہ ایک بزنس ادارہ بنایا ہوا ہے، یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ کہ ملک کے اندر وفا کوئی نہیں ہے۔ سوچا جائے تو ملک کے اندر اگر کوئی بھی عہدے کا آدمی ہے وہ 10 بندے کے گھر میں رہ سکتا ہے، آیا کنالوں کے گھر میں 2 کنال 5 10 کنالوں کے گھر نہیں رہ سکتا۔ 3 بھائی ہیں نا، 3 بندے گھر میں رہ سکتے ہیں، 4 بھائی ہیں، 4 بندے گھر میں رہتے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بیچ کے ملک میں فیکٹریاں لگائیں۔ ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے تو لوگوں کی بھوک دیکھیں، لوگوں کا انجام دیکھیں۔ اگر ملک کے نظام صحیح ہو تو سڑکوں میں لوگ نہیں مانگ سکتے کبھی، جیسے انگلینڈ میں، لندن کے اندر، باہر یورپ کے اندر بے روزگاری لاؤنس چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون آدمی مانگتا ہے، کون بوڑھا ہے، کس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ وہ مانگتا ہے۔ اس طرح ملک میں کرمنل لوگ ہو جاتے ہیں، پھر خودکشیاں کرتے ہیں، یہ ڈرگ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ اصل یہ بیماری وجہ یہی ہے کہ جب برڈن پڑتا ہے، سوچ آتی ہے، سوچ میدے میں جاتی ہے تو انسان کو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں۔ رانا محمود صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایک آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے۔ ہاں۔ کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک 5 سال تک ٹرم پوری نہیں کر سکا، اور یہ بزنس ادارہ بنایا ہوا انہوں نے، بزنس ادارہ ملک کے اندر کوئی وفا نہیں ہے۔ جی جی، ملک کے اندر وفا تو اپنی پراپرٹیاں بیچ کے ملک کے اوپر لگائیں۔ صحیح۔ یہ ایک بندہ اگر میری 2 بھائی ہیں تو ہم 5 بندے میں رہ سکتے ہیں، آیا کیا وہ بھی ایک انسان ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پرائم منسٹر ہیں، یہ 10 20 کنال کوٹھی میں رہتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کوٹھیوں کو دفع کریں، ان کو باہر کے ملکوں میں دیکھیں۔ باہر کے ملکوں میں لوگ آتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ جب ڈیفینس میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ، یہ تو ہمارے بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں آپ گزارتے، جیسے DH میں کوٹھیاں لوگوں 2 بھائی ہیں، کنال 2 کنال کوٹھیاں نہیں ہیں۔ یہ غریبوں کی ہیلپ کریں، ان کو اپنا بزنس کرائیں۔ یہ اور تعلیم کو جو ہے نا، یہ تعلیم جو پرائیویٹ اسکول ہے نا،
इनको भी पकड़ दकड़ करके इनका ये भी बिजनेस अदारा है, प्राइवेट स्कूल जितने बने हुए हैं, ये कारोबारी अदारा बनाया हुआ लोगों ने, यानी कि इनको प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ना, इनको गवर्नमेंट के अंडर करके फीसें फ्री की जाए और पानी का बिल भी पाकिस्तान में फ्री किया जाए। पानी का बिल तो होता ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है राना महमूद साहब ने। थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। अब हमारा चैनल लीजिएगा, ZM TV चैनल का नाम है और मैं और आप प्रोग्राम का नाम है। थैंक यू सो मच। मैं सिंगर भी रहा हूँ अपने। अच्छा, आप सिंगर, तो कुछ ज़रा सुनाए नाज़रीन को थोड़ा सा। अपने दौर में रहा था। अच्छा, थोड़ा सा एक कलाम हो जाए। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हे हो ला 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 ला। गुड, माशाल्लाह, आप कभी भी सिंगिंग जारी रखनी चाहिए, आपकी बड़ी प्यारी आवाज़ है। कभी कभार मैं पहले तो शौक रखा हुआ है, तो मेरे दोस्त कभी कभार होते हैं तो फिर करते हैं, लिखता हूँ मैं गाने थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। ये जो है ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सियासतदान है इनको मुल्क के साथ वफा करनी चाहिए। ये बिजनेस के इदारे छोड़ दें, ये सीटों के इदारे, ये मुल्क के साथ आवाम के साथ वफा करें, इस मुल्क के साथ। पहले लोग इस तरह नहीं करते थे, हमने पुरानी कुर्सी देखी हुई है। ये 25-30 साल से ये कारोबारी इदारा बनाया हुआ, अपना लूट मार की, बाहर भाग गए, इधर चले गए, उधर चले गए, और इनको चाहिए अपना फैक्ट्रियाँ लगाएं। जितने बेरोजगार लोग हैं, इसे क्या करना, तलीम, इतने लोगों ने तलीम हासिल की है, बेचारे लोग भूखे मार रहे हैं, क्या फायदा, फिर तलीम से ख़त्म कर दे स्कूलों की। और ये स्कूल प्राइवेट जो है इनकी जो फीसें इनको छानबीन करें, ये बिजनेस का इदारा बनाया हुआ है। और सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें की आपने। बस ये ऐसे ही है, अल्लाह पाक इस मुल्क की बयान करना ये है कि मुल्क के साथ वफा नहीं है, जन्म सी बात करता है, ये मुल्क के साथ वफा नहीं है, ये बिज़नेस इदारा है। ये बिज़नेस मैं देख रहा हूँ कि मैंने पहले भी जनरल ज़िया का दौर देखा है, भुट्टो का दौर भी मैंने देखा है। अच्छा, 1965 की जंग भी मैंने देखी है। तो मैंने ये देखा है कि ये जब आहिस्ता आहिस्ता जो अब जो हालात में देख रहा हूँ कि सिर्फ बिज़नेस इदारा है, अपने आप को वो यानी कि वो मुल्क के साथ कोई वफा नहीं है। मैं नहीं देखा कोई वफा, मुल्क का सरमाया लूट के थोड़ा सा लोगों को दे देते हैं, बाकी 75% अपनी जेब में डाल के इधर उधर लगा देते हैं। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में, तो इंशाल्लाह फिर आप प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू सो ये मच। कौन सा चैनल आपका? ZM TV, यूट्यूब में बनाया? यूट्यूब ये चलता रहता है? चलता रहता है, 24/7 चल रहा है हमारा। 4 प्रोग्राम है इसके अंदर हमने, इंशाल्लाह आप देखिएगा। थैंक यू क्या नाम है आपका? शायरा खान साहिबा, आप ये मुझे बताइएगा महंगाई के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। आज का टॉपिक हमारा महंगाई पे है, तो आप मुझे बताएं कि महंगाई कितनी है, और ये जो अब लीडरशिप आई उसके बाद महंगाई का क्या रेट चल रहा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा है या कुछ नॉर्मल हुई है, कम हुई है? हिसाब नहीं, कोई नॉर्मल नहीं हुई, कोई कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है, ख़त्म कर दिया, और पूरा पाकिस्तान तो भिखारी बनी है। पहले भी था तो बिल्कुल ख़त्म। सही। आपको जो मतलब अब आप शॉपिंग करने के लिए आई हैं, तो आपने आज क्या क्या ख़रीदा और आपको कितना महंगी चीज़ें लगी हैं पहले की निस्बत? महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गई है, दिन ब दिन ही महंगाई हो रही है, और डबल ट्रिपल भी कम ही होगा जो मैं कहूँगी। तो राइट, थैंक यू सो मच शाहिदा साहिबा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तो आज हमें बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन साहब हैं हमारे साथ। मोहम्मद यासीन साहब, तो आज हम एक दो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, थोड़ा सा ऊँचा बोलेंगे। तो ये है कि मोहम्मद यासीन साहब, हमारे पाकिस्तान में 1.5 करोड़ आवाम यानी कि 150 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपकी बिल्कुल बात सच है कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है आवाम जो है ना बेरोज़गार है। जी यासीन ये साहब, तो हुक्मरानों को चाहिए ना कि इनके लिए कोई जॉब, कोई ऐसे रोज़गार हो, है ना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, मतलब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बनाएं, जी, जी। मॉल्स बनाएं, इस तरह की मॉल कोई। बनाएं। जी जी, बिल्कुल ऐसी बात। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिल जाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए। तो यासीन साहब, आप ये रिक्शा चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए, ठीक हो गया। तो आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिल जाता है बस। मेहनत करने की बात है, मेहनत आप करते हैं।
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई हाँ जी। क्योंकि मैं कल देख रहा था इंटरनेट पे, वैसे ही मैंने सर्च किया तो 30% इन्फ्लेशन जो है नाजरीन, जो महंगाई है वो 30% के हिसाब से मंथली ऊपर जा रही है। यानी कि पिछले साल अगर आपने एक कॉफ़ी का डब्बा लिया है, ठीक है, अगर उसकी प्राइस 500 रुपये है तो आज आप देखेंगे तो वो 1000 रुपये हो जाएगी। आप देखें ना, ये जो हुक्मरान है पहले कह रहे थे हम यही काम करेंगे, अब महंगाई तो कम आए हैं ना नए टैक्स लगा रहे हैं, नए से नए टैक्स लगा रहे हैं। ये टैक्स का बड़ा मसला है, क्योंकि अभी हमने 2 बंदों से पहले भी इंटरव्यू लिया है तो वो भी यही कह रहे थे कि टैक्स की जो प्रॉब्लम है, आप अमीरों को तो बेशक लगाएं टैक्स, लेकिन आप एक गरीब बंदे को टैक्स लगा रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं टैक्स पे करने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो और मोहम्मद यासीन साहब आप ये बताइए। अमीर लोग तो टैक्स दे ही नहीं रहे, अमीर तो दे ही नहीं रहे टैक्स, बहुत प्यारी अमीर बात। तो दे ही नहीं रहे, जो टैक्स दे रहे हैं वो तो गरीब दे रहे हैं, जी जी ऐसे ही है। अमीरों को तो पूछ ही नहीं रहे। यासीन साहब एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जब से ये बेरोज़गारी बढ़ी है, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बंदा जो है अनएम्प्लॉयड है। आप क्राइम रेट देखें, ठीक है, तो उसमें जो है नाजरीन क्राइम रेट में इस वक्त बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, ठीक है। सिंध है, कराची है, लाहौर है, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर जो नौजवान लोग हैं, ठीक है, वो चोरी करने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है, डकैती डालने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सच है कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, या ड्रग्स देना हाँ शुरू जी, कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बेरोजगार जो लोग हैं उन्होंने कुछ पेट तो पालना ही है, ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो चोरियाँ भी करेंगे, डकैतियाँ भी करेंगे, हाँ जी, और ड्रग्स भी लेंगे। ठीक है। तो मोहम्मद यासीन साहब हमारा चैनल है ZM TV के नाम से, ठीक है, और इसके प्रोग्राम है मैं और आप, तो आप जरूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, तो आए लोगों से पूछते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मौज़म मलिक है, क्या नाम है आपका? तौसीफ़ है। अच्छा तौसीफ़ साहब, ये हमें बताएं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ यानी कि 150 लाख बंदे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है सर आपके ख्याल में? सर इसकी वजह यही है, महंगाई है। महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी जी। जब तक यानी हमारे हुक्मरान जो है साहिबान वो ठीक नहीं होंगे, अच्छा नीचे वाला तबका नहीं ठीक होगा, उतनी देर तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुक्मरान तबका जो है वो जब तक सही काम नहीं करेगा तब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी। आप कुछ गवर्नमेंट को और जो भाई जो हमारी जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके बारे में उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर जी देखिए, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है इस टाइम, जो भी है हर बंदा अपने यानी योमिया यानी हर चीज़ पे लगा हुआ है कि पूरा एक योम है, यानी सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या घर लेके जाना है, क्या पाना है, क्या खाना है, ठीक है, वो हर बंदा इसी चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है ना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर सके, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर बंदे को अपना मैं बीमार हूँ, आज क्यों मैंने मेडिसिन लेनी है, घर लेके जानी बहुत है, अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। किसी के पास, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है यहाँ पे अब किसी के पास टाइम नहीं है, जो खुशहाल है वो खुशहाल से खुशहाल ही हो जाए, ठीक है ना, और जो नीचे वाला यानी तबका है वो नीचे से नीचे ही जाए जा रहा है दिन ब दिन। तो फिर साहब एक और बात भी आपसे ये, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से क्राइम रेट अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में से ये तकरीबन 60% क्राइम रेट अप हुआ है, इसकी वजह क्या है? सर जी इसकी वजह सिंपल है कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, यानी पावर परचेजिंग लोगों की कम हुई है, सही, सेल परचेज लोगों की रुकी हुई है, ठीक है। असल में इन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए, टैक्सेस ज़्यादा। अगर आप लोग बाहर के मुल्कों में देखें, ठीक है, तो वहाँ पे होता है, मैं खुद भी यानी बाहर रह के आया अच्छा, हूँ, वहाँ पे होता है कि आप लोग जो कमा रहे हैं, ठीक है, उसका छोटा सा टैक्स निकाल के वो आवाम पे ही यानी सर्वाइव करते हैं, आवाम पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आवाम से निकाल के, गरीब से ही निकाल के, अमीर तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है क्योंकि उसने तो बचना है, अपने कारोबार को सेव रखना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं भी यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा भी महीने का 20% टैक्स मैं पे करता हूँ। 20% टैक्स? 20%। सर्विसेज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें से हमारा 20% यानी जाता है। अच्छा। तो अगर हम लोग फाइलर होते हैं तो फाइलर में से हमें 8% की राहत मिलती है, 12% में महीने का टैक्स पे करते हैं। अच्छा, तो साहब ये हम गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ये टैक्स पे बात है, कुछ नहीं कर सकते, इनके पास पैसा है ही नहीं, मांग मांग के थक जाएंगे। अच्छा,
ठीक है ना, ये अपने लोगों से मांगना शुरू हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर वो सामने एक गरीब आदमी खड़ा है, उससे जाके कह देंगे ना कि यार हमने मुल्क चलाना, मुल्क के लिए कुछ काविश करो, तो वो करेगा। बाहर से मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर से मांग के भी जलील होने वाली बात है। वही बात जलील होने वाली बात है। यानी बाहर जाओ मांगो, आगे से वो गवर्नमेंट तब चल सकती है जब हम लोग खुद करें, ठीक है ना। अपने घर को ठीक करने के लिए किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम दोनों में से, यानी मैं और मेरी वाइफ है साल की तरीके, हमारे में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमने आपस में ही इसको सॉल्व करना, बजाय कि मैं अपनी अम्मी को बुलाऊँ, वो अपनी अम्मी को बुलाए, बाहर हम साया को बुलाएं, रिलेटिव को बुलाएं, तो तब मामला हल हो। अपने मुल्क का भी यही हाल है कि बजाय कि अपने मिल बैठ के यानी मामला हल करने के बजाय हम लोग बाहर लोगों को आवाज़ देते हैं, यूएई को आवाज़ देते हैं, सऊदीया को आवाज़ देते हैं, चाइना को बुलाते हैं, IMF को दे के बैठे होते हैं। हाँ, IMF को दे के बैठे हुए हैं। अब हम आएंगे, हमें कुछ देंगे तो हम मुल्क के लिए ये करेंगे। हमें तो ये नहीं, एक लॉलीपॉप के पीछे लगाया है, छोटा सा लॉलीपॉप है कि जी हम ये आएंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। नॉर्मल से अब आप देखें, अमीर का बच्चा तो पढ़ता ही पढ़ता है, गरीब का बच्चा उस वक्त पढ़ता है वो अपना पेट मार के पढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने पेट को काट के पढ़ता है। अमीर का बच्चा उसको तो सहूलियत हैं। जी। और यहाँ पे आप लाहौर में नहीं देखने, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे वो लोग कामयाब हैं, यहाँ से वो तालीम लेके अपने गांव में जाते हैं जो पीछे से गांव की ज़मीनें सेल करके आए होते हैं। सही। यहाँ पे मोस्टली आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बैचलर हैं, जिसको भी हॉस्टलाइज हैं, अपना यूनिवर्सिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, उनको मुझे तो पता ना, वो वहाँ से आते हैं पीछे से ज़मीनें सेल करके यहाँ पे आके अपनी स्टडी करके अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। जो यानी सिटी में लोग रह रहे हैं वो सिर्फ अपने दिन पूरे दिन को सर्वाइव कर रहे हैं। सही। यानी सुबह 6 बजे से अगर कोई बंदा निकलता शाम 5 बजे, उसको जब शाम 5 बजे जब घर जा रहा होता है उसको पता होता है मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या घर लेके जा रहा हूँ, क्या नहीं लेके जा रहा हूँ। उसको सुबह 6 बजे से लेके 5 बजे तक पता होता है कि मैंने दूध के पैसे कितने निकाले हैं, दही के कितने निकालने हैं, बिल के कितने निकालने हैं। वो बेचारा सारा दिन हिसाब में ही लगाना पड़ता है। जी। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा प्रोग्राम लगता है एवरी सैटरडे, मैं और आप, तो यूट्यूब पे आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the video. अभी सब्सक्राइब करें।